चलिए इस वक्त सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी आपकी बात करें। Good morning. There is a tragedy unfolding in our country today. Government wants to ignore this tragedy. It wants to misinform people about this tragedy. But the truth is that a huge tragedy is unfolding. And I'm not just talking about the farmers, because that is only a part of that tragedy. And I would like to go into a little bit of detail about what is happening to our country. And I think it is important that youngsters who believe in the future of this country listen carefully to what I am saying, because this is not about the present. What is happening is about your future and this country's ability to be economically strong, this country's ability to give you a job, this country's ability to stand tall among other nations. So, what we have seen, and we've seen it in industry after industry after industry. We've seen it when it comes to the airports. We've seen it when it comes to infrastructure. We've seen it when it comes to power. We've seen it when it comes to telecom. We've seen it when it comes to retail. Across the board, what we are watching is the development of massive monopolies in this country. What do I mean? I mean that 3, 4, 5 people are now owning this country. This country is now owned by a limited, small group of people who I term as crony capitalists, who have a close relationship with the Prime Minister and who provide the Prime Minister with media support. And I don't mean you, because you are not the decision makers. I mean the forces that control you. Which was the space that was protected from monopolies until now? First of all, the biggest business in this country, and this is something that youngsters have to understand, the biggest business in this country is agriculture. 60% of our people are in agriculture, and in terms of the value, agriculture is by far the biggest hit. Agriculture is not just what the farm grows. Agriculture is the machinery that moves that produce. Agriculture is the structure of how that produce is shaped. And now what we have seen is the last bastion that was protected from monopoly is now being overrun. How is it being overrun? 3 new laws have been passed. They are designed to destroy Indian agriculture. How are they designed to do it? By destroying the mandis, by destroying the Essential Commodities Act, and by making sure that no Indian farmer can go to court to protect himself. And to me it is a tragedy that this entire country is just watching this ridiculous show. It is a tragedy because it shows me that the country itself is not able to understand the depth of what is happening. So what is going to be the result of this? The result of this is going to be 3 or 4 people
are going to own India. 3 or 4 people are going to own the entire agricultural system. Farmers will not get the value they deserve. The mandi system will be destroyed. 3 or 4 businessmen will be able to store millions and millions and millions and millions of tons of wheat, rice, other essential commodities. And then, my friends in the middle class, you will be paying prices that you have never imagined. Please understand that the rice you buy, the wheat you buy, comes to you at the rate it comes because of the APMC, because of the agricultural system, because of the structure. So this is not an assault on the farmers. This is an assault on the middle class, and this is an assault on every single youngster in this country who is not going to be able to get a job. So this is what I want to tell the youngsters. Realize that your independence is being taken away. Realize that this happened before and we fought this, and everything we have today is because of the fight that we fought. And the same exact thing is happening to India today. This is the simplest way I can put it. So, why are the farmers of Punjab and the farmers of Haryana standing there? Who are they? They are the patriots of this country who are protecting the livelihood of 60% of this country. I 100% support them. And I go further. Every single Indian person should support them because they are fighting for us. They are not fighting for themselves. They are fighting to prevent this country from falling into the hands of 2 or 3 people. That is the heart of what I wanted to say. मैं हिंदी में बोल देता हूँ. देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें, तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की नौकरी बढ़ती है. पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की नौकरी बढ़ रही है. मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं. आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में नौकरी नहीं थी. आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा हो, किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था. कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था. उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था. ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं. 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा. तो अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को. चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर. क्या आप क्रिएटिव हैं, कुछ नया और अलग करना चाहते हैं, खिलौनों और गेम्स में रुचि है, तो आपके पास मौका है 50 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का. यह मौका आपको भारत सरकार दे रही है. पीएम मोदी के मंत्र पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 जनवरी 2021 को भारत का अपना गेम चैलेंज टाइकेथॉन लॉन्च किया. शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने कई संस्थानों और मंत्रालयों के साथ मिलकर टाइकोथॉन की शुरुआत की है. टाइकोथॉन एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य है ऐसे खिलौने और गेम्स बनाना जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, मूल्यों और पौराणिक कथाओं पर आधारित हों. मन की बात में भारत को टॉय इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए पीएम मोदी ने टीम अप फॉर टॉयज का मंत्र दिया था. हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं. खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी.
हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। साथियों, इसी तरह अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को टॉय और गेम इंडस्ट्री में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रतियोगिता में स्कूल स्टूडेंट्स से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स तक हिस्सा ले सकते हैं। 3 कैटेगरीज में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है: जूनियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइकोथॉन 2021 के लिए इसकी वेबसाइट toykathon.mic.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जनवरी से ही चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। अगर आप भी क्रिएटिव हैं, तो टाइकोथॉन में हिस्सा लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल से भारत फ्रांस का युद्धाभ्यास का आयोजन होने जा रहा है। अभ्यास का नाम डेजर्ट नाइट 21 है। कल से जोधपुर में यह सैन्य अभ्यास शुरू होने जा रहा है। भारत फ्रांस की वायुसेना मिलकर अभ्यास करेगी। भारतीय वायुसेना राफेल से अभ्यास करेंगे। 20 से 24 तारीख तक इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। डेजर्ट नाइट 21 नाम रखा गया है इस युद्धाभ्यास का, जहां पर भारत और फ्रांस एक साथ युद्धाभ्यास करने वाले हैं और इस दौरान राफेल भी गरजता हुआ सुनाई देगा। कल से भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्ध अभ्यास करने जा रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल दम दिखाएगा। थार के आसमान में गरजेगा राफेल, सरहद पर बाहुबली मचाएगा खलबली। जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। कांप उठेगा पाकिस्तान, सहम उठेगा ड्रैगन जब इस अंदाज में थार के आसमान में राफेल गरजेगा। आसमान का बाहुबली जब उड़ान भरेगा तो दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। इस गर्जना से दुश्मनों का दिल दहल जाएगा। भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल जब सरहद पर दिखाएगा दम तो चीन के उड़ेंगे होश, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी हो जाएगी गुम। जोधपुर के आसमान में 20 जनवरी को भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ अपना दम दिखाएगी। दोनों देशों के जाबाज युद्धाभ्यास करेंगे। ये युद्धाभ्यास 20 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगा। एक्स डेजर्ट नाइट 21 के इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के साथ राफेल भी उड़ान भरेगा। तो सरहद पर राफेल की गर्जना से दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि राफेल है दुश्मनों का कार। राफेल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से है लैस, यानी ये दुश्मन के रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, ये हिमालय के ऊपर भी उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और 3700 किलोमीटर मारक क्षमता। स्कैल्प, मीटियोर मिसाइल हैमर, माइका जैसे खतरनाक मिसाइलों से राफेल पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर सकता है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को मात देता है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दुश्मनों का होश उड़ाने के लिए सरहद पर बाहुबली राफेल अपना दम दिखाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर की एक बेटी गुंजन को प्रधानमंत्री के साथ बैठकर 26 जनवरी की परेड देखने का न्योता मिला है। दरअसल गुंजन को टॉप 50 मेरिट होल्डर सूची में स्थान प्राप्त करने पर आमंत्रित किया गया।
शिक्षा मंत्रालय हर वर्ष ऐसे मेधावी छात्रों को बुलाता है। इस वर्ष गुंजन ने यह उपलब्धि हासिल की है। उनका जन्म पिपाड़ में हुआ और आरंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई। इसके बाद जयपुर में वनस्थली विद्यापीठ में एमए इंग्लिश में वे मेरिट होल्डर रही। ठीक है सर। जी करने के लिए मैं एमिटी यूनिवर्सिटी गई थी। वहाँ पे मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश किया है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं वनस्थली विद्यापीठ गई थी। वहीं से मुझे मौका मिला है कि मैं पीएम बॉक्स में जाके मतलब उनके साथ बैठूं। वहाँ पे मैं मेरिट होल्डर रही हूँ और अब मैं 24 को दिल्ली जा रही हूँ इस इवेंट के लिए और ये बहुत एक अच्छा मौका है। इससे बहुत लोग एंकरेज होते हैं अच्छे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं चूरू जिले के सादुलपुर। यहां मिनी सचिवालय के सामने किसान विरोधी बिल का विरोध किया गया। ऐसे विरोध में एक बुजुर्ग किसान जो हैं उन्होंने जमकर ठुमके लगाए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ बुजुर्ग किसान मोदी जी थारी ठोक कट्ठे हम दिल्ली आ रहे गाने की धुन पर ठुमके लगा रहे। घर की इब नहीं लुटाएंगे, हम नहीं हटाएंगे। किसान भगत सिंह आया फिर कमजोर थे लागे। मोदी जी थारी तोब कड़ा हम। चलिए अब आपको दिखाते हैं